This water call is in now the being sky. recorded. Yeah. Interessant. Das Thema ist, desto mehr ist es wichtig. Viele Menschen finden das Leben auf dem Land besser als der Stadt ist. Ich glaube auch besser als das Leben auf dem Land besser ist. Ich habe auf dem Land für 8 Jahre gewohnt. शिवानी आपकी Das, बार बार आप माइक को दूर करते हो क्या? फेस इधर उधर करते हो तो आवाज लो हो जाती है। no, sir, एक ही जगह पढ़ा था। ठीक है बोलिए। Land, Landführ 8 Jahre gewohnt. Dann habe ich nach die Stadt umgezogen, weil ich in der Nähe der meine Arbeitsplatz wohnen soll. In der Stadt gibt es viele Einrichtungen wie Ausbildung, Medizin, ein, Medizin, die, sorry sir, मेडिसिन आई दी तो इसको क्या कहेंगे मेडिकल फैसिलिटी Es gibt auch große Krankenhaus mit Geräte, moderne Geräte und Möbel। मतलब there are hospital with new technologies। Okay। ओके Yeah। सर Fitnessstudio, Einkaufszentrum und so weiter. Yeah। Der Transport ist besser als im Land. In meinem ट्रांसपोर्ट बोला है? Heimatland, ट्रांसपोर्ट बोला है? Transport, हाँ जी सर No, Verkehrsmittel। Verkehrsmittel। Verkehrsmittel is transportation। Okay। ओके सर Yeah। एक Verkehrsmittel ist besser als im Land. In meinem Heimatland wohnen am meisten Menschen gerne in Städten. Deswegen hat es in Städten viele Wait, Einrichtungen. wait, Shivani, wait। Not started, start। Stadt. या स्टार्ट। ठीक ओके, डी थोड़ा सा साइलेंट रखिए। स्टार्ट। ओके। ठीक Deswegen hat es in Stadt viele Einrichtungen. Ich musste sowohl ein paar die Vorteile und die Nachteile erklären. Ich denke, dass es das Leben auf dem Land gesünder als der Stadt ist, weil die Luft sauber und viele Bäume sowohl als auch äh, sa, sa, Sad, Sato Preis und Welt gibt. Das Leben ist in der Stadt sehr leichter als auf dem Land, weil es viele Einrichtungen gibt. Es gibt auch viele Uni und Kinos. Jetzt musste ist die Nachteile sprechen. Das Leben ist sehr langweilig auf dem Land als der Stadt. Deshalb gibt es weniger Kinos, Einkaufszentrum, Bildung, Einrichtungen und Spielplatz. Es gibt auch keine großen Krankenhäuser. Das ist sondern meine Meinung. Es ist das Leben besser in die Stadt als auf dem Land. Das ist meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut। Und haben Sie auch im Internet recherchiert über dieses Thema? Have you also searched in internet about this topic? नो सर इसमें नहीं किया था खुद से किया था। ओके, गुड। ओके, सो it was good। Okay, first, second,
Okay, so in their start kan man auch Bioprodukt bekommen. Bioprodukt is बस सर। man kann auch in der Stadt Bioprodukt bekommen. Gemüse, frisches Gemüse, Obst, या ओके सर। स्टेट में क्या होता है मतलब जो आउट देम लैंड उस पे क्या होता है कि जो यस हमें सर। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्ट। वहां पे क्या होता है जो फ्रूट्स होते हैं उनमें केमिकल लग के जाता है ताकि वो खराब जल्दी ना हो। ओके या ओके und es gibt auch so viele Landwirtschaft auf dem Land। एग्रीकल्चर एरिया इज ऑल्सो मतलब वो भी काफी बड़ा है। ओके यस सर। या या गुड ओके। और आपने मतलब एक्सप्रेशन और भी कोई टॉपिक करा है? नो सर। ओके व्हाट अबाउट श्राइबन? सर लेजन करिए। लेजन करिए। ओके डाउट? हाँ जी है, डाउट है सर। सर 12 है, 12 है पेपर। कौन से? 12। 12th? यस सर। दिस वन? हाँ जी। हाँ जी सर। ओके नहीं सर, ये तो नहीं है। ओके नहीं टेस्ट नंबर? सर, टेस्ट नंबर 12। अच्छा आप 12 पे पहुंच गए, नाइस। हाँ जी। आपको लेसन ऐसे ही करना है रेगुलर बेसिस पर। ओके ठीक है सर। वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। अच्छा क्या स्कोर था वैसे 12 का? सर जो ये वाला पेपर में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, ये थोड़ा काफी वो था, क्या डिफिकल्ट था? कहते हैं, डिफिकल्ट लगा लो या पजल करने वाला था, ऐसा समझ नहीं आ रहा था कुछ। ओके तो आपने मतलब एक साथ पूरा बैठ के करते हो या थोड़ा थोड़ा करके? करती हूँ मैं एक साथ बैठ के, पर टाइम लगा था आज इस बार। अच्छा टाइम। और इसमें आप डिक्शनरी भी यूज करते हो राइट? सर बहुत बीच कम। में? बीच अच्छा में बहुत कम। एग्जाम। ओके ओके। और उसके बाद जैसे एग्जाम कर लिया फिर आपने मार्क्स देख लिए फिर उसे दोबारा पढ़ते हो सारा? ये क्या करते हो? ये गलत हाँ वाला जी चेक सर। करते हो बस? हाँ नहीं, जो गलत होता है फिर देखती हूँ वो मतलब कि कैसे है, जो तो समझ आ जाए फिर तो मैं आपसे नहीं पूछती, जो ना ओके समझ आए फिर मैं ओके ठीक है। और बाकी शुरू से पूरा पढ़ते हो या नहीं? कैसे मतलब सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला मैंने करा, ठीक है। इसमें से मेरा एक गलत हुआ लास्ट वाला, बाकी के दो ठीक है। ठीक है हाँ बट जी। काफी बार क्या होता है जब हम टेक्स्ट पर देखो अभी तो हमने पेपर तो कर दिया बट काफी हाँ बार जी। क्या होता है हम पढ़ते हैं काफी चीज हमें समझ नहीं आती है, हमें काफी न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो हाँ आप जी। हाँ उन्हें जी। लिखते हो या नहीं? हाँ जी सर, मतलब कि इसमें ही नोट कर लेती हूँ, अलग से नहीं लिखती। ओके जो मेरा मेथड था मैं क्या करता था, जैसे मैंने पूरा एक पेपर करा, पेपर करने के बाद आंसर देखे ये गलत है ये सही है, जो सही है वो भी पढ़ता था जो गलत है वो भी करता था। और जो हाँ जी। सारे वर्ड्स हैं वो भी अलग लिखता था। उससे देखो टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाता था बट ये था कि मतलब करने के बाद कि अगर आगे ये वर्ड आए तो हम इसे ध्यान में रखना है। ओके इसे अपने नॉलेज में रखना है क्योंकि जो आज वर्ड आया है तो जरूरी भी है कि वो कल भी आ सकता है कोई और पेपर में, राइट? हाँ जी सर। और आज हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है टागे साइटन, ठीक है। आज आपने पढ़ा, ठीक है, आपका सही भी हो गया बट आपको स्टिल इसका मीनिंग नहीं पता, तो हाँ जी आज सर। नहीं तो कल ये वर्ड परेशान करने वाला है, राइट? तो यस मैं सर। क्या करता था इसलिए इसे करता था पूरे को फिर अगेन, ओके। काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता था बट यस। कोई और ऑप्शन ही नहीं था। हाँ जी सर। ओके आपको कौन सा वाला पूछ रहे थे 12? 12 सर। ओके सर इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टाइल में।
मतलब आप ये कह रहे हो आपने इसका ये मार्क करा था ए? नो सर, मैं मतलब कि मैं आपको डाउट पूछने लगी हूँ। अच्छा, इसमें तो डाउट है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। 10 अल्टर आइंस्टाइन। इसमें नहीं है सर मेरे को। और फर्स्ट टाइम में है। फर्स्ट टाइल में है? अच्छा, फर्स्ट टाइल में कौन सा है? सर थर्ड नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ? नहीं सर, तीसरा नंबर। यही तो है ये, 8। सर फर्स्ट टाइल। अच्छा, अरे यार फर्स्ट टाइल, अच्छा ये हाँ वाला। हाँ जी सर। ठीक है। यूटा कानिस्ट गुड गेहन। ओके। ठीक है। नाग देम आइंसो क्लॉक डाउन। टॉपिक क्या है वैसे ये लेसन से? Well, since you were their strong life stay, so I'm almost there. Nagpasha straight context is for monotonous in the bottom. Fast to come. Beho. Utaganist good gehen. ओके। अच्छा, आपको बताइए क्या लगा है इसका आंसर और क्यों लगा है? सर मैंने इसका फॉल्स लगाया था आंसर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का यस। मतलब कि जो जूलिया है, वो नॉट गुड गे है, मतलब कि
आई थिंक अच्छे तरीके से जा नहीं सकते, ऐसे कुछ आंसर नहीं मीनिंग नहीं, टू गो वेल, ओके, मतलब यूटा कान निस गुड गेहन, लाइक यूटा है। कैन नॉट गो वेल, ओके, मतलब ऐसा ओके नहीं है यहाँ पे चलने वाला गो है कि ओके जो चीजें हैं कुछ अच्छी नहीं हो रही, ओके, डज नॉट गोइंग वेल, ओके। ओके जैसे आपने कभी सुना होगा कि लाइक एवरीथिंग इज गोइंग वेल, लाइक सब कुछ सही चल रहा है, लाइक दैट। तो यही उसका उल्टा है ये, लाइक लाइक यूटा कान निस गुड गेहन, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो उसके नागबार थे, जो नए आए थे, वो वहां पर साफ सफाई नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे लिख रहा है मान श्रॉय मिस दाराउ फिन, जो मैन था वो मेरे ऊपर लाइक चिल्लाया, ओके, वेर जिन जी überhaupt der Schrank bleibt stehen, zweimal musste der Vermieter schriftlich auffordern। और मैं लाइक ये यूटा कह रही है कि मैंने जो सफाई के लिए 2 टाइम्स जो ओनर था वहां के, उन्हें बोला कि ये जो म्यूबिल स्टुक है ये ऐसा ही मतलब दूर रखा है। और ऊपर भी उन्होंने बोला ये वाली चीज, आईनी का टागा स्पेटर, लाइक। अच्छा, आपको ये आर्टिकल पढ़ के क्या समझ में आया? मेरे को इसकी हाफ स्टेटमेंट ही लगी थी, इसलिए भी मैंने इसका वो लगा दिया। नहीं 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 नहीं, तो इस ये मतलब ठीक तो है, क्योंकि क्या हुआ था, मतलब ये जो यूटा है इसके जहाँ पे ये रहती है, ये कोई कॉमन प्लेस में रहती है जहाँ पे हॉस्टल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई न्यू रेंट रेंट पर आए, ठीक है, वो क्या है, वो क्लीन नहीं करते अच्छे से, ठीक है। और जैसे मतलब जो नए आए हैं वो यूटा से बोल रहे हैं बार बार ही कि आप इसे ठीक करो, बट ये कह रही है कि मैं 1984 से वहां पर रह रही हूँ और मैं एवरी 14 डेज में सफाई करती हूँ, ओके ओके। यूटा ने सोचा था कि दिस सैटरडे या कोई और डे था, ये रहा, कि जो मतलब जो रेंटर है वो करेंगे, बट एक्चुअल में उन्होंने नहीं करा, ओके। और यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट करी है कि ओनर से कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर इसका रिस्टिस है कि निस्ट गुड गेन, गोइंग नॉट वेल, ओके ओके। काफी बार पता है क्या होता है, हम A1 A2 में, देखो मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था। अब जैसे निस्ट गुड गेहन, अभी मैं सोच रहा था कि मतलब कि कोई जाने से ऊपर बात है, हम लाइन ढूंढेंगे, वो वाली लाइन मिल गई, अच्छा आंसर ये रहा। बट B1 में एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपको पूरा सेंस समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। आपने टाइल सेकंड करी होगी तो आपको इसका अंदाजा लग गया होगा कि इन diesem टेक्स्ट geht es darum। जब आप पूरा टेक्स्ट अच्छे से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आंसर करेक्ट क्या है, राइट। हाँ जी हाँ जी सर। तो हाँ, तो हम क्या, हमारा क्या वो रहता था कि हम लाइन ढूंढते थे, ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, अगर वो मिलती ठीक है आंसर आ गया, बट अब ऐसा नहीं होगा, ओके। तो यस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्टोरी समझते हुए आनी है, तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे, ओके। इसका आंसर ठीक रिस्टिश हो जाएगा, ठीक है सर। ओके। इसके अलावा क्या है, जस्ट टेल। फिर 19। 19th क्वेश्चन नंबर, ओके। Die Schüler der Glattauschule in Zürich müssen nach Berlin fahren. Wegen der Entfernung kommt aber ein Bahnreise für okay. Die Schüler der Glattauschule in Zürich müssen nach Berlin fahren. Wegen der Entfernung. ओके, आपको इसका मीनिंग क्या समझ में आया है? मेरे को इसका मीनिंग यही निकाला मैंने कि हम्म वो मतलब कि स्कूल की तरफ से इधर लेटर चूल्हे में जाना चाहता है। ते ठीक है। बिकॉज इसका मीनिंग था एंट, इसका मीनिंग भूल गई सर, इसका मीनिंग निकाला किसका था। मीनिंग? किसका मीनिंग? एंट एंट एंफेनum मींस डिस्टेंस। हाँ जी डिस्टेंस, मतलब कि नो ऐसे कुछ था इसका मीनिंग। हम्म
जो मुझे देखो देखो मैंने भी वोकैबुलरी इतनी सारी पढ़ी है, मुझे हाँ इतना पता जी। है जो A1 से लेकर और B C1 तक वोकैबुलरी है, अगर हम उसे अच्छे से रिवाइज करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो सारे जो वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सारा आपको एक एक वर्ड वहां पे मिल जाएगा। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस रह चुका है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग क्या है, ठीक है। लाइक जो श्यूलर है, ग्लाटाल श्यूलर का जो स्यूरिस में रहता है, वो बर्लिन जाना चाहता है, ठीक है। Wegen der Entfernung kommt aber ein Bahnreiser für sie nicht in Frage. Because of distance, मतलब वो काफी इतना ज्यादा दूर रहता है कि वो जो ट्रेन से बानराइजर उससे ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ जी। ओके, तो आपको देखना है उसके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। आपने क्या आंसर लगाया था पहले आप वो बताइए, क्योंकि इसमें काफी सारे एडवर्टाइज पढ़ने होंगे फिर। सर मैंने इसका लगाया था, मैंने लगाया था इसका आई। आई, ठीक है। और इसका आंसर है क्या एक्चुअल में? एच। ठीक है, अब दोनों पढ़ लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लास एंड फार्ट इंस शी गेबीट। ओके यार, आपने जो आई लगाया है इसमें आप बताइए बर्लिन का बात कहाँ हो रही है, पहले तो ये बताइए आप। सर सेकंड थिंग, जो बात हो रही है वो लिख रही है कि 4 डेज आपको स्टे करना है वहां पर। स्किनिंग की बात हो रही है तो स्पोर्ट्स की। ये रही, ये रहा। शी के बीट 4 नाइट ओवर स्टे है, जिसमें खाना पीना सब मिलेगा। 4 डे आपको इसकी पास है। किंडर्स की कुर्सा फ्यूर अनफेंगर उन फोर्ट गिश शनीटा गिश रिटना। ओके, जो मतलब क्लासेस हैं, जो न्यू सीखना चाहता है स्केटिंग उनके लिए भी है, और एडवांस बंदों के लिए भी है। और अक्टूबर से मार्च तक है ये। तो आप हमने बताइए क्या सोच के लगाया है ये वाला। सर क्योंकि बात हो मैं रही है सर, बल्ली हाँ जी है। सर, देखो क्योंकि बात मैंने कहाँ पे सारे, जाना है इसे। हाँ बताइए, चलो आप बताइए। मैं कह रही हूँ कि मैंने सारे एडवर्टाइज पढ़े थे, क्योंकि मेरे को किसी मेल लिखा लग नहीं रहा था किसी मेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलो कोई नहीं लग रहा, ये लग रहा है वैसे। आई। लगा नहीं था, क्योंकि मैंने कहा। बट बचा तो आपने ये लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप पता है क्या करना, जैसे आपने पढ़ा, ठीक है, तो आप ना जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मार्क कर लेना। एक तो ये बर्लिन जाना चाह रहा है, एक ये चीज जरूर मेंशन होनी चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं है तो हमारा आंसर गलत है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो रेलवे से नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके लिए काफी दूर है। ठीक है सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक तो हाँ ट्रेन नहीं होनी चाहिए उसके लिए, और बर्लिन में उसे जाना है, ये दो कंडीशन होगी, आंसर हमारा वही है। अब एच वाला पढ़ लेते हैं एक बारी। पहली चीज बर्लिन, ओ सॉरी नॉट दिस वन, बर्लिन। हेलो। फ्लूक। हाँ जी। बर्लिन और फ्लूगराइजर। फ्लूगराइजर क्या होता है? ओ, बाय प्लेन। या बाय प्लेन, यही तो चाहिए था हमें। हाँ जी सर। और इसमें लिख रहा है कि आप वे स्टे कर सकते हैं, छोटे मतलब ग्रुपन होगा। फर्केस मिटल है 5 डेज के लिए है। ओके, स्टार्ट फ्यूरुंग अनमेल्डुंग सुफ्रू फ्यूरुंग इन प्रोग्राम म्यूजियम। ओके, पर गामो म्यूजियम। ओके, तो यही है। देखो एक तो आपका ये रहा बर्लिन, और हाँ फ्लूगराइजा बस के लिए नहीं बोल रहे इसमें। हाँ जी सर। अच्छा आप और देखिए, देखो ये बर्लिन का लिख रहा है। सर पहले मैंने ये भी लगाया था, तो फिर अच्छा मुझे, ठीक फिर है, मैंने दोबारा पढ़ा, फिर मैंने ये, बट आप फिर ये मैंने पढ़ के देखना जरा क्या लिख रहा है लाइन ये वाली। निस्ट नूर फ्यूरी सिमरन। ओके। स्कूल बच्चों के लिए नहीं है ये, ठीक है, ये कैंसिल। ओके। अच्छा ये है, बट इसमें आप मुझे बताओ बर्लिन का लिख रहा है। इसमें बर्लिन तो नहीं है। हटाओ, ठीक है। यस सर। अच्छा देखो बर्लिन है भान राइजा, क्या उसे उससे जाना है रेलवे से? नो सर। हटाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो बात हो रही है, अच्छा बर्लिन कहाँ लिख रहा है इसमें? इसमें भी नहीं है। वांडरूम के लिए लिख रहा है, मतलब जंगलों में हाइकिंग होती है, इसे भी हटाओ।
ठीक है, ये सारे देखो आपके सामने मैं कर रहा हूँ कैंसिल। इसमें बताइए बर्लिन कहाँ लिख रहा है? इसमें भी नहीं है। हटाओ इसे भी। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे वाला। इसमें यहाँ पे जा रहे हैं वाइनलैंड, हाँ बस राइजा। ओके, बट इसमें जी। बर्लिन नहीं है। यस सर। तो आंसर क्या बचा आपका? अच्छा। तो मैंने आपको सारा प्रूफ करके दिखा दिया, इसका आंसर ये क्यों नहीं है। ठीक है, यस सर, एक और ओके। क्लियर कर हाँ दो। बताइए, बताइए। जो 18 एंड फर्स्ट है, ये भी क्लियर इस कर बार दो। हाँ, ये वाला भी क्लियर करते हैं बिल्कुल। Herr Moser unterrichtet alter Gesichter und musste dieses Jahr mit seinen Schülern nach Griechenland। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग बताइए। कुछ भी नहीं है इसमें। वो है हेयर मूस है, वो ग्लिसरन ओले जैसे। बताइए क्या मीनिंग है। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट दीजिए बस मुझे, फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है। यस शिवानी, ओके, टेल द मीनिंग। सर, जो उसकी टीचर है, जो ओल्ड स्टोरी वो स्टूडेंट को मतलब कि वो कुछ डिस्कस करना चाहती इन ग्रीन ग्रीन ग्रीस ग्रीसलैंड। ग्रीशनलैंड, अच्छा। एंड वो इसका सर्च कर। हाँ जी सर। हाँ बताइए। ऑफर कोई सर्च कर रही है उधर जैसे एयरप्लेन की एंड अकोमोडेशन की। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर। हेर मोजर है, वो हिस्ट्री पढ़ाती है, आल्टा गिसिस्टा ओल्ड हिस्ट्री पढ़ाती है। गिसिस्टा मीनिंग होता है हिस्ट्री, ठीक है, आल्टा मीन ओल्ड। उन म्यूसे dieses Jahr mit seinen Schülern nach Griechenland, ग्रीशनलैंड। और दिस ईयर वो इसी साल, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ग्रीशनलैंड जाना चाहती है। er sucht ein Angebot für Flug und Unterkunft। और कोई ऐसा एक ऑफर देख लिया जहां पर एक एयरप्लेन, मतलब एक तो एयर का भी हो और मतलब वहां पे रुकने का भी सिस्टम हो, ठीक है, ये चीज वो देख रही है। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने आंसर पहले क्या लगाया है।
इसका सर मैंने लगाया था 1%। देखो इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रीशनलैंड होना चाहिए, ठीक है, और फ्लूग और उंटरकोम्स, ठीक है, और बच्चों के साथ, ठीक है, अकेले के लिए नहीं, पूरा ट्रिप उसके लिए आऊं, ये 2-3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वहां पे। नाउ टेल। और एक ऑफर भी दे वो अंगीवोट, ठीक है। नाउ टेल। सर मैंने इसका मतलब कि ये वाला मेरे को 2-3 एडवर्टाइजमेंट में मिला था, तो मतलब ये भी डाउटफुल ही था। फिर बाद में मतलब कि ए पीछे देखा ए लगा हुआ, बट ए में भी मेरे को डाउट है, इसमें ऑफर की तो कोई बात भी नहीं हो रही। ऑफर के लिए बात नहीं हो रही, नहीं ठीक है। सर। देखो पहली बात, देखो अब हम वो कंडीशन में लाएंगे, ठीक है, फ्लूक की बात हो रही है, यस सर। ठीक है, ग्रीशनलैंड, हाँ जी सर। ठीक है, और ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसे एक बार। अच्छा इसे पढ़िए एक बार। बिलीव स्टेटस, बिलीव टेस्ट क्लास एंड राइज मीनिंग। मतलब कि क्लास वाइज स्टूडेंट ही आएगा इधर। नहीं नहीं, देखो बिलीव टेस्ट मीन होता है पॉपुलर, ओके, और हाँ। क्लास एंड राइज मीन होता है क्लास ट्रिप, हाँ जी सर, क्लास ट्रिप। ठीक है, क्लास एंड मीन क्लास, राइज मीन्स ट्रेवल। इसमें आप देखो ओवरनाइट जो है यूगेंड होटल, ठीक है, इम सेंट्रूम, ओके, इंक्लूसिव फ्रूस्टोक, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बस ट्रांसफर, फ्लुगहाफन होटल और फ्लुगहाफन, ओके। ठीक है, हिन उन रुक ये क्या लिख रहा है रुक फ्लूग, अच्छा, मतलब इन और वापस वो ले जाएगा, मतलब टिकट्स, मतलब ये जो 23400 पर पर्सन के लिए है, इसमें क्या क्या है, टैक्स और सारा कुछ इंक्लूड है, ठीक है। ओके। तो ये इसका हो गया, बाकी देख लेते हैं कि बाकी क्यों नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसमें लंदन की बात हो रही है, ग्रीशनलैंड की बात हो रही है, जी सर नाम। ठीक है, बढ़ गया। इसे देखते हैं, बर्लिन की बात हो रही है, नो सर। मतलब अरे मतलब हमारा जो है ग्रीशनलैंड जाना है ना, हाँ जी सर। ठीक है, हटाओ, ठीक हम्म, है। ये बताइए इसमें ग्रीशनलैंड की कहाँ बात हो रही है, इसमें भी नहीं है सर। इसमें तो ये बोल रहे हैं ग्रिल आबेन टियर बियो बागटुंग, ये तो हाँ। जंगलों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, हटाओ, हाँ जी। ठीक है, ये पहले से ही कटा हुआ है, तो ये तो हम वैसे ही हाँ नहीं देखेंगे। बर्लिन क्लास, बर्लिन की जाने की बात हो रही है, जाना कहाँ पर है, ग्रीस। ठीक है, हटाओ, हाँ ये जी। ग्रीशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। हाँ जी। अच्छा इसमें ये बताओ फ्लाइट की कहाँ बात हो रही है, फ्लाइट ग्रीशन की तो हो रही है, बट फ्लाइट की दिखाई है, इसमें जो बात कर रहे हैं राइज अप बस, बस की बात कर रहे हैं, और प्लस इसमें कोई, हाँ ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ या नहीं जी, हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, बस की बात हो रही है, बट हमें जाना किससे, उससे, फ्लाइट हाँ से, जी। हाँ जी। बर्लिन की बात हो रही है, नो ठीक है, सर। ओवर ये स्केटिंग की बात हो रही है, हाँ स्कीइंग जी। की सॉरी, ठीक है, और ये हो रही है वाइनलैंड की, जाना कहाँ पर है, ग्रीस। ग्रीशनलैंड, खत्म। अब बताइए क्या डाउट है उसमें, अब क्लियर हो। ओके। हाँ पता जी। है क्या करना है आपको, गलत पहले देखना है, गलत देखोगे तो सही आपका आंसर सामने आ जाएगा और हाँ जी सर। कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। आप एक काम करा करो, पता है क्या करा करो, ठीक है, आपने जैसे ये पढ़, आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है, पॉइंट पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेस्टिस यार, ओके, क्लास एंड पार्ट, ओके, ये सब आपने मार्क कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब जब आप पढ़ने लगोगे ना, कुछ तो 2 से 3 आपको ऐसे मिल जाएंगे, हमें कंफर्म होगा यही इसका आंसर है,
ठीक है। हाँ जी। जो बिल्कुल कंफर्म हो उसका आंसर आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। अब लग रहा है इसमें डाउट है, आपको लग रहा है इसका डी भी है और इसका जी भी है, तो आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर इसका पढ़ा, आपको लग रहा है ई भी है इसका एफ भी है, फिर आगे बढ़े, फिर देखा कि इसमें ना जी वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट आएगा, तो जी वाला यहाँ पर आ गया, यहाँ से काट के यहाँ पे लिख दिया जी, ठीक है। ठीक है। अब आपने 19 पढ़ा ये, फॉर एग्जाम्पल इसका आपने कोई भी एक जीरो मार्क्स हो गया, अब बचता है हाँ क्या, इसका तो डी आ गया, आपने डी कर दिया, अब बचता है इन दोनों, आपको जो दोबारा पढ़ना है इन दोनों को ही पढ़ना है सिंपल, और उसमें से एक मार्क करना कौन सा ज्यादा सही है, ठीक है। ठीक है। ऐसे करना, और ये मत सोचो कि पहली बार में आंसर निकले, जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा हटाओ, ठीक है। जब बाकी कर लेंगे ना तो सही वाला हमें ऑप्शंस कम रह जाते हैं फिर, ठीक है। यस और बताइए इसके अलावा क्या डाउट है। सर, लास्ट टाइम 29 and 30। ओके, ये दोनों हाँ जी सर। 29 और 30 दोनों, दोनों। ओके। Wenn ein Fehler entsteht, haben Kunden überall auf der Welt ein Recht. Leistungen kann man bei der Firma anrufen oder E-Mail schreiben, okay. Muss man sich innerhalb von 30 Tagen bei der Firma melden। अच्छा, आप मुझे बताइए 29 का मतलब क्या है पहले तो। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो उसमें जो है, जो वो डिवाइस है उसके, उनमें से क्या मतलब कि वो हो रहा है, खराब चीज है। अगर कुछ खराब निकलता है तो कस्टमर क्या करेगा, ओके। यस सर। हाँ हाँ, तो जी। इसका मतलब ये है, ठीक है। When ein Fehler entsteht, ठीक है। तो इसका हम पढ़ते हैं एक बार। फेलर वाली बात जहां लिख रही है वही इसका आंसर होगा। सर थर्ड पे है, कहाँ पर है। तीसरे नंबर पे 3 पॉइंट है ना सर। ओके, नहीं है, नहीं है। एक बार फिफ्थ वाला पढ़ना। सर ये भी पढ़ा था मेरे को, इसमें भी लगा नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ ना। इसमें कह रहे हैं अगर आपको कोई फेलर मिलता है और एक्सपायरी से मतलब पहले, यस। ठीक है, तो यस सर। काउफ डाटूम को आपको या तो कॉल या उसे मेल पे करना है। जिस दिन परचेजिंग डेट है वो आपको कॉल या मेल पे करना है। और एक बार आप देखिए इसमें दिस वन, यस सर। सर आपने, हाँ बताइए। मेल का, हैं, व्हाट। इसमें मेल का नहीं लिखा। मेल कहाँ कहाँ लिख रहा है, ईमेल आईडी दी हुई है, ओके ओके। हम्म, और ठीक। ओ आर कॉलिंग नंबर, ओके। यस सर। यस। आपने कौन सा लगाया था इसका। मैंने तो यही वाले तीसरे पॉइंट पे देखा था, फिर मैंने लगा दिया था वो वाला, सील लगाया था। 30 डेज में उसे वो करना होगा। हाँ जी हाँ जी सर। ओके, चलो ये तो नहीं है वैसे तो। यस। अच्छा, 30 वाला। टी वाला भी हाँ जी सर। Die Garantezeit Beitrag je nach Preis des PCs 36 oder 16 Monate gilt für alle Schäden den gekauften Gerät, kann der Käufer auswählen। गारंटी वाला पॉइंट कहाँ लिख रहा है। सर फर्स्ट पे ही है।
With das Gerät in their phone in an ausgewählten Garantie site 36. ओके ठीक है, मिल गया इसका आंसर। हाँ जी सर। ये क्या लिख सर रहा है? मैं, हाँ will das Gerät in their phone in an ausgewählten, हाँ जी ausgewählten मीनिंग, हाँ जी सर। ausgewählten मीनिंग aus, टू चूज। ओके हाँ जी यस सर, स्टार्टिंग में था इसका। यस। अब देखो जैसे गारंटी की बात हो रही है ना, तो आपको गारंटी वाला ही पढ़ना है। गारंटी की यस बात देखो ये हो रही, देखो अगर हम देखेंगे गारंटी की बात हो रही, अब मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, यहाँ पे हो रही है बेस्ट बेसाइटिगुम, मीनिंग होता है डैमेज, जब कोई डैमेज हो जाता है कुछ चीज, ठीक है। फेलर बेराइसाइटिकुम डोरसाइन, ये होता है जब ट्रांसपोर्ट से, ये बात कर रहे हैं जब ट्रांसपोर्ट से डैमेज हो जाएगा पैकेजिंग। ओके, और यस ये बता रहे हैं गारंटी किससे अलाउ नहीं है, गारंटी गिल्ट मिसफ्योर। ओके, यस तो ये है इसका सी। यस ओके ओके, इसके अलावा जस्ट टेल। बस सर यही था। ओके, वोकैबुलरी। वो कवर, हाँ जी किया सर। ओके गुड। अच्छा, कौन सा पेज किया है या चैप्टर किया करा है? सर पेज किया, ओके, कौन सा बताइए? फिफ्थ का तीसरा पेज। फिफ्थ का दूसरा। तीसरा सर। तीसरा, एक, दो, तीन। अभी एंटीस्टेन वर्ड आपने देखा था वहां पर, हाँ जी सर। एंटीस्टेट लिखा था, हाँ जी मीनिंग सर, ओरिजिनेट ऐसे कुछ था। टू ओरिजिनेट। ओके, और मैं आपको एक सेकेंड, ये रहा, यस सेम मिल गया वर्ड। हाँ जी। ठीक है, ये डर साइड, एनी टाइम, या गुड। कूंस्ट स्टॉफ, प्लास्टिक, ओके गुड। लीफन, लीवर, टू डिलीवर, वेरी गुड। नाकहाल्टिश, नाकाइटिस, उसका मीनिंग, परमानेंट। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मीनिंग सस्टेन, जो उसका लॉन्ग टाइम तक। ओके ओके परमानेंट। हाँ वही, एक सेकंड में देखूं, और क्या क्या इसके सिनोनियम आते हैं। देखो ये रहा, नाक हाल्टिश, इसमें देखो ये लिख रहा परमानेंटली, Permanently. लॉन्ग टर्म। ओके, फॉर अ लॉन्ग ठीक, टाइम, लॉन्ग टाइम, ठीक है। दिस वन, सर इसका मीनिंग अपने सर, सन एनर्जी, व्हाट? सन एनर्जी ना। यस, ओके। दिस वन, पावर आउटलेट, या स्विच बोर्ड जो होता है, पावर आउटलेट या सॉकेट, स्विच बोर्ड जो आ जाता है। ओके,
फरलायहन, टू लैंड, नो, टू लैंड ही वैसे तो, फरलायहन, टू अवॉर्ड, टू लैंड, टू कंफर्म, टू प्रोवाइड, टू गिव, ओके। फरमाइडन, टू अवॉइड, या नेक्स्ट वन दी फर्शवेंडुम, ऐसे कुछ था, एक मिनट सर, पुलोटे ऐसे वेस्ट, कुछ। वेस्ट, वेस्ट, ओके ओके, ओके। स्ट्रॉम फरब्राउक, सर, किसका पूछ रहे इलेक्ट्रिक, हो? स्टॉम फरब्राउक, ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ओके, हाँ जी। या दिस वन। फर्समुत्सन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, पुलो पुलोटे ऐसे कुछ था सर। या टू पोल्यूट, टू पोल्यूट, ओके। देखो आशिवानी, अभी जैसे आप B2.1 नहीं कर रहे तो आप कल से जो करोगे, हाँ जी ओके, सर। 5th और 6th चैप्टर करोगे कंप्लीट, तैयार वोकैबुलरी। अगर आप इतना स्लो स्पीड से करोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, यस ठीक है। 5th 6th सर, चैप्टर ऐसे करोगे। थोड़ा बहुत, सर ऐसे बताइए। जैसे थोड़ा बहुत याद तो हो जाता है, जब इकट्ठा कर फिर बिल्कुल भी याद नहीं होता। अब तो मतलब कि जो मैंने 3 करे, अब मेरे को तीनों ही याद है पेज। ओके, यार पता है मेरा क्या मानना है, ठीक है आप हाँ ऐसा जी। कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, मैं याद ही नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जैसे ये बुक है, ठीक है, मैं इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, ओनली नॉर्मल पढ़ना है, कैसे 60-70 टाइम्स पढ़ना है। हाँ जी सर, मैं भी तो याद नहीं करती, ऐसे रीड करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या होगा, फिर उसका मतलब उससे कि ये होगा कि आपको मीनिंग नहीं बताए जा रहे, बट जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आपने कोई वर्ड पढ़ा तो आपको थोड़ा सा उसे वो कर लेते हो, मतलब आइडिया लगा लोगे इसका मीनिंग ये था। हाँ जी सर, ऐसे ओके, करते हैं सर। हाँ जैसे उमजोंस मैंने आपको एक वर्ड बताया था, याद है, देखो ये लिख रहा, मैंने आपको बताया था नहीं, उमजोंस्ट, सर नहीं। ये कॉस्ट एंड लॉस में आया था, उमजोंस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको याद नहीं है बट मुझे याद है। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, बोला था। उमजोंस्ट, कॉस्ट एंड लॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, उमजोंस्ट, शेड हाँ एंड जी। डैमेज, ये सब बहुत आते हैं वर्ड, ये तो मतलब भरमार है। ये जो फरबॉट हो गया, ये वर्ड आपको दिखते ही रहेंगे, ओके। हाँ, तो जस्ट यही है, ओके। आप क्या करना है, आपको कल के लिए ह्यूरन कैसे चल रहा है। यूरो नहीं कर, मैंने करी, आज करूँगी सर। एक ह्यूरन करना है, लेसन, ठीक है सर। ओके। आप एक काम करना, लेजन ह्यूरन में से कोई एक चीज, और एक्सप्रेशन और श्राइबन में से कोई एक चीज, ओके। ठीक है। आज आपने एक्सप्रेशन कर लिया, कल श्राइबन कर लेना। और ठीक है। वोकैबुलरी 5 और 6, एक काम करना, पेज आप एक ही सुनाना, बट आप ट्राई करना 2 से 3 बार दोनों चैप्टर इसे आप नॉर्मल हाँ रीड कर लो, ओके। ठीक है। और हाँ शिवानी, अभी एक नाइट में बैच चल रहा है, ओके, उसमें हाँ जी सर। 9th चैप्टर आई थिंक चल रहा है, ओके। इफ यू ठीक वांट है। 1 hour का बैच होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर। सर मतलब कि आज। हाँ डेली चलता है वो तो, 8:30 या 9 9 o'clock, वैसे डेली 8:30 क्लास स्टार्ट होती है, बट आज मुझे कुछ ठीक। काम है तो 9 o'clock स्टार्ट होगा, ओके। ठीक। आइए ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा, ओके। वो तो मैं कर सकती सर, कोई पता क्या क्या, काम होता है घर में ना, थोड़ा बिजी ज़्यादा ही हूँ मैं थोड़ी। यार ये तो देखो है, चलो बता देना आप जैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।